पीछे ना हटूंगा कभी मैं, तू जो चाहेगा करूंगा मैं, ताकूं हमेशा तुझी को मैं, तेरे वचन से बढ़ूंगा मैं, जिंदगी भर मैं रहूं तेरी छाया में प्रभु, मेरे सारे सोते तुझ में ही मैं पाता हूँ, जिंदगी भर मैं रहूं तेरी छाया में प्रभु, मेरे सारे सोते तुझ में ही मैं पाता हूँ, मेरी जिंदगी तेरी अमानत, तू ही मेरा पिता, मेरी चंगाई तेरे लहू से योग्य तू है खुदा, मेरी जिंदगी तेरी अमानत, तू ही मेरा पिता, मेरी चंगाई तेरे लहू से योग्य तू है खुदा, मेरी स्तुति को तेरे चरणों में इत्र के समान उड़े लूंगा मैं, तेरे चरणों में इत्र के समान उड़े लूंगा मैं, ताकूं तुझी को मैं हर पल, तेरे वचन से बढ़ूंगा मैं, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं
चरणों में इत्र के समान उड़े लूंगा मैं तेरे चरणों में इत्र के समान उड़े लूंगा मैं ताकूं तुझी को मैं हर पल तेरे वचन से भरूंगा मैं यीशु
Good morning, High Praise Church family. Once again, a warm welcome to each one of you for our Sunday online worship service. We are all here in Bangalore, but our heart is there in Mumbai with all of you all. Wherever we are, whether we are placed here or in Mumbai or across the world, we want to know that we will worship the Lord in truth and in spirit and in full power and vigor, giving the Lord all the glory for what He's done in our lives. As the word says, this is the day that the Lord has made, and we will, yes, we will rejoice and be glad in Him. Hallelujah. I'm sure we'll have a great time of worship led by our worship team. We'll have pastors leading us in the word, sharing from the word. We've got a guest speaker, Brother Bijoy from Gideon's International. He'll be sharing from the word and speaking to us about their ministry to us. So even if we are in two different cities, we're going to be united in spirit, worshiping God in truth and in spirit. Come on, let's close our eyes in a little prayer as we start our Sunday morning worship. Loving Heavenly Father, we just want to thank you, God, for this wonderful, beautiful time that you've given us to come before your presence to worship you, Father. Another 1 week, Lord, you protected us all. You kept us all safe under your mighty wings. Wherever we've been, Lord, you've been so, so, so good to us, Lord. And today morning, Lord, through our online worship service, we come together in one spirit, Lord. Though physically we are in different locations, but Lord, in spirit we are together and we are here to worship you, Father. We want to give you the glory. We want to give you the highest praise that you alone deserve, Father. We thank you, God, for this wonderful day. Speak to us through your word. Bless us together, Lord. In Jesus' most mighty name, we make this prayer. And all God's people say, Amen, amen, and amen. Hallelujah. Over to our worship team. I'm sure they're all ready to lead us into an awesome, powerful time of worship. God bless you. God bless you. God bless you. Hope to see you soon. God bless you. Good morning, Highest Praise Church. What a joy to be in the house of the Lord. If you are watching us online and you're seated at your homes, we want to send a warm good morning to you. I hope you have a blast this morning in God's presence. Let's just gather up our spirits and leave everything that we're doing and just focus on our God this morning, and let's just worship Him, for He deserves our praise. So let's make a joyful shout unto God. Amen. Are you ready, church? If God has given you hands, come on, put that together for Jesus this morning. One desire, God who keeps our hopes alive, faithful friend in times of trial, Jesus. You're our heart's one desire, God who keeps our hopes alive, faithful friend in times of trial, Jesus. Call upon you in the middle of the night, when surrounded by darkness, God, you shine so bright. I will call upon you in the middle of the night, when surrounded by darkness, God, you shine so bright. Church, lift your voices. We will shout your name, and you're our heart's one desire, our hopes alive, faithful friend in times of trial, Jesus. Oh, you're our heart's one desire,
alive, faithful friend in times of trial. Jesus, what a beautiful name. You're our hearts and one desire, God who keeps our hopes alive, and faithful friend in times of trial. Jesus, one more time. You're our hearts, oh, you're our hearts and one desire, God who keeps our hopes alive, faithful friend in times of trial. We will shout your name every day. Come on. We will shout your name always. We will shout your name. We will shout your name in every day. Every moment of our lives, we will shout your name always. And we will shout your name. Oh, we will shout your name. And you're our heart's one desire, God who keeps our hopes alive, faithful friend in times of trial. Jesus. Heart's one desire, a faithful friend in times of trial. You know, we're going through so much trial across the world, in our nation, in our lives. Our life is shaken. It's not normal. They say it's the new normal, but God is faithful. He has been faithful from end to end. And so this morning we have a lot to thank Him for. Let's just lift up our spirits. If you're still just getting up from the bed, just remove those sheets out and just come shout out. We're going to sing some more songs and just praise Him. Amen. Hallelujah. Ready, church? आराधना का आत्मा और सच्चाई से, यही समय आराधना का आत्मा और सच्चाई से, यही समय आराधना का आत्मा और सच्चाई से, यही समय आराधना का आत्मा और सच्चाई से। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हो? हम तैयार हैं। स्वर्ग को खोल दे प्रभु, पृथ्वी को भर दे यीशु, अपनी आग की बारिश होने दे। आत्मा दे प्रभु, सभी मनुष्यों
विश्वास से, यही समय है प्रार्थना का। आत्मा और विश्वास से, यही समय है प्रार्थना का। आत्मा और विश्वास से, यही समय। आपकी आवाज उठने दो अपने घरों से। आत्मा और विश्वास से, तो क्या तैयार है? आइए हम प्रभु से कहे, हाँ हम तैयार हैं। स्वर्ग को खोले प्रभु, पृथ्वी को भर दे यीशु तेरी महिमा के बादलों से। आत्मा दे दे प्रभु, सभी मनुष्यों पर यीशु अपनी आग की बारिश होने दे। स्वर्ग को खोले प्रभु, पृथ्वी को भर दे यीशु अपनी आग की बारिश होने दे। आत्मा दे दे प्रभु, सभी मनुष्यों पर यीशु अपनी आग की बारिश होने दे। Amen. This morning, I believe God is doing something new in our lives. क्योंकि यह समय है परमेश्वर का काम के लिए, यह समय है आराधना के लिए, यह समय है जब हम अपने आप को देते हैं, जब हम सब कुछ परमेश्वर के हाथों में देते हैं। वो जिंदा परमेश्वर है, आज हमें चलाएगा, आज हमें दर्शन देगा, आज हमें मार्ग दिखाएगा। And this morning we just want to be depending on Him. We just want to be trusting on Him this morning, for He leads us, for He helps us. A faithful friend in times of trial. Jesus. Lord, we thank you, Jesus, that when there is so much hopelessness in our lives, Lord, you come with a hope for us. So help us not to get weary and tired in the circumstances that we are in, but just depending on you, God, more and more of you. क्योंकि this is your time, Lord. परमेश्वर तेरा समय है, तू कुछ इस धरती पे कर रहा है, तेरे लोगों के साथ तू कुछ कर रहा है प्रभु। ये हम विश्वास की आंख से देख रहे हैं। Even in the middle of so much of pain and agony and fear, you're doing something, Lord. That's who you are. Sometimes we don't understand what's happening, what you're doing, but you're doing something, Lord. You're doing something for the good of your children. हानि के लिए नहीं प्रभु, नाश के लिए नहीं, तू कुछ कर रहा है, हमारे जीवन की भलाई के लिए कुछ कर रहा है प्रभु। तो आज प्रभु हमारे जीवन में कुछ नया कर दे। जो भी लोग आज हमें देख रहे हैं, whoever is watching us online right now through YouTube and Facebook, Lord, I pray that you will minister to their hearts this morning. They've come with a desire, but you are coming more stronger with your desire, Lord, this morning. With your love this morning, God. Come, Lord. We do not want to do anything more without you in our midst, without your presence. So Holy Spirit, manifest your presence and take complete control over each of our lives, our hearts. This morning, let it be a time to be refreshed in your presence, God. Refresh us, Lord. We come to you, God. We come to you. Refresh us. We're so tired, Lord.
At times we are so fearful of things. We're not able to be bold, Lord, just like how you want us to be. But this morning, Lord, you will make us as we come to you, God, as we come to your presence, Lord. मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा
हाथों को उठाए, आज इस कलीसिया की शुरुआत में ही एक समर्पण मन के साथ हम जाए। प्रभु हम यहाँ पर है, आज तू हमसे बात करे हमारे जीवन के लिए प्रभु, हमारी शक्ति के लिए, जो भी कुछ आज तू हमसे बात करे प्रभु, हमारे दिलों को तैयार कर प्रभु। हम यहाँ पर है प्रभु, तेरी उपस्थिति में खड़े प्रभु। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, तू यहाँ पे है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपके घरों में है और परमेश्वर की वाणी है कि वो जंगल में मार्ग को तैयार करेगा, उस जंगल से वो रास्ते को निकालेगा जहां पे आपको लग रहा है कि कोई भी रास्ता नहीं है, परमेश्वर आपके लिए उस रास्तों को निकालेगा। परमेश्वर का वचन कहता है इशाया 43 उसका 19वां वचन, Behold, I will do a new thing and I will make a way in the wilderness and the river in the desert. परमेश्वर उस जगह से मार्ग निकालेगा जहां पे कोई भी रास्ता नहीं है। आइए हम विश्वास करें, परमेश्वर आपके लिए मार्ग को निकालेगा। प्रभु हम धन्यवाद करते पिता इस सुंदर समय के लिए, परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु। जो लोग भी हमें देख रहे हैं परमेश्वर इस ऑनलाइन को, प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर तू उनके लिए मार्ग को निकालेगा उनके जीवन में प्रभु जी, और प्रभु तू उनको स्वस्थ करेगा प्रभु, तू उन्हें चंगा करेगा प्रभु जी। हम धन्यवाद देते परमेश्वर तेरी हर एक भलाइयों के लिए प्रभु जी जो तूने हम पर किए प्रभु। प्रभु सचमुच परमेश्वर तू भला परमेश्वर है प्रभु, वो तुझसा कोई नहीं है प्रभु यीशु। प्रभु तेरे चरणों के पास बैठते प्रभु, वो प्रार्थना करते परमेश्वर आने वाले वचन से तू हमसे बातें करेगा प्रभु, और हमारे दिलों को तेरे प्यार से भरेगा पिता। यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना करते पिता, आमीन आमीन। Good morning, Highest Praise Church. सुप्रभात हाइस्ट प्रेस कलीसिया। Amen. A warm welcome to each one of you who's watching us online today. आप सबों का स्वागत है जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं। Amen. Today is a special day. आज का दिन बहुत खास है। That doesn't mean that the other days are not special. ऐसा नहीं कि दूसरे दिन खास नहीं होते, But yeah, there is something special today. लेकिन आज बहुत ही खास दिन And है that's why I am here. और इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ। Amen. I just want to reflect on that song which we just sang and worshipped. और मैं उसी गाने पर मनन करना चाहता हूँ जिसको गाते हुए हमने It just आराधना brought की। back so many memories where all of us said, Lord, I am there. और उन सभी पुराने यादों को उसने ताज़ा हो चुका है जब हम कहते थे कि परमेश्वर हम यहाँ मौजूद है। Oh, because of that one statement is why we are all here today. और केवल उसी एक वाक्य के कारण हम सब यहाँ मौजूद And हैं। I can confidently say, and I can say that out of my experience, that God did not let us down. और मेरे तजुर्बे से मैं कह सकता हूँ परमेश्वर ने हम पर हार नहीं मानी। What a faithful God that we serve. कितने विश्वास योग्य वो खुदा है। Amen. आमेन। So it's indeed a joy to come together once again to worship Him in this house. फिर एक बार परमेश्वर के भवन में एकत्रित होके वाकई में खुशी की बात है। And it'll be more joyful when we all come together as a congregation to worship and lift His name up. इससे भी खुशी की बात तब होगी जब हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठा होंगे। And I know that the day is not far. मैं जानता हूँ वो दिन दूर नहीं है। Yeah, we've already gone through a lot of months, a lot of days, thinking that every week there could be something new or some news would be coming out. हर
हर हफ्ते दर हफ्ते हमने बिताए हैं ये सोचते हुए, अपेक्षा करते हुए कि आज के आने वाले हफ्ते में कुछ तो खास और कुछ तो बेहतर न्यूज़ सुनने में आएगा। Yeah, it may look like it's delayed, ऐसे लग रहा होगा कि देरी हो रही but है, I won't give up. लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, Amen. I want to see that day. क्योंकि मैं उस दिन को देखना चाहता And I हूँ। want to encourage each member of Highest Praise Church that you also keep that hope alive, that we will all come together and worship the Lord. और मैं चाहता हूँ हाइस्ट प्रेस कलीसिया के सभी सदस्य इसी आशा को बरकरार रखें कि आने वाले दिनों में हम एकत्रित होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। Amen. Amen. The fellowship brings a lot of joy in our hearts. मेल मिलाप से हमारे हृदय में खुशी होती है। Thanking God for His privilege, or the privilege that He has given us to do whatever is there in our control to bring this to you. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी सहायता की ताकि हमारे पास जो कुछ है उसके साथ हम आपके सम्मुख आए। Amen. आमेन। So when the month started, I think Pastor mentioned that this month is a special month. और जब इस महीने की शुरुआत हुई तभी पास्टर ने कहा था कि ये महीना बड़ा खास महीना है। And he said special people are born. क्योंकि उन्होंने कहा था खास लोगों की पैदाइश हुई है। So we have some people who celebrated their birthdays last week. तो पिछले हफ्ते कुछ लोगों ने अपने जन्मदिन को मनाया है। And our dear Janice, who celebrated her birthday, हमारी संडे स्कूल स्टूडेंट जैनिस ने अपने बर्थडे को मनाया। Sister Chetna, who's Sister Udita's mother, she celebrated birthday. और सिस्टर उदिता की मम्मी ने अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया। Amen. It's in a time like this, each day passing by, if you're able to survive till the next Sunday, that itself is God's blessing, I believe. और ऐसे एक महामारी के समय में अगर हम जी पा रहे हैं और एक एक दिन हम परमेश्वर को धन्यवाद दे पा रहे हैं, वही एक बरकत की बात है। I believe as they celebrated their birthdays, I want to wish them good. I want to wish them blessings into their life. और जैसे इन्होंने अपने जन्मदिन को मनाया, हम आशीष मांगते हैं परमेश्वर की ओर से आपके जिंदगी में। And may God bless you with His abundant grace and bless you with His riches, not your riches, but His riches. Amen. परमेश्वर आपको बहुतायत रीति से उनके अनुग्रह के अनुसार आपको आशीष दे। Amen. आमेन। And may you lack nothing in your life. और आपको अपनी जिंदगी में किसी चीज की घटी ना Amen. If हो। you're watching me right now, just say Amen and claim that blessing. अगर आप हमें आप देख रहे हो, आमेन कहो और अपने बरकत को आशीष को पा लीजिए। I just want to say that the Highest Praise believes that your fellowship is a blessing to us. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि हमारी कलीसिया हाइस्ट प्रेस मानती है इस बात को कि आपका मेल मिलाप हमारे लिए सौभाग्य की बात है। Amen. आमेन। Yeah, but apart from the birthdays, we also have some people who've been through terrible times in the last week. और जब खुशी का वक्त रहा है, माहौल रहा है, उसी के साथ साथ कुछ लोग थोड़े परेशानी में से भी गुजरे हैं। But we are here, we are testifying that God has brought them back and restored their happiness in their lives. लेकिन हमारी कहानी ये है कि भले ही हम उस तराई से गुजरे, परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा So है। just to give you a small gist, last Fridays, I believe, not this Friday, but last Friday last Saturday during the fasting prayer, we came together and we prayed for a lot of topics. और पिछले शनिवार को जब हम उपवास प्रार्थना के लिए एकत्रित हुए थे, हमने कई विषयों के लिए प्रार्थना की थी। One of the topic that Pastor mentioned was, और उनमें से एक विषय जो पासवान ने कहा था वो ये था, there is a family in our church एक परिवार है हमारी कलीसिया में who had a beautiful time. As a family, they've been having a beautiful time. और जिनका परिवार समेत बड़ा अच्छा वक्त था। There is so much of laughter and joy in that family. और इतना खुशी और आनंद उनके घर में था। And suddenly the devil puts or creates or gets or creates some kind of disharmony there. और अचानक से उनकी जिंदगी में थोड़ा सा तनाव आ जाता Not है। among the family members, परिवार के बीच but नहीं, they faced a lot of problems. लेकिन उनकी जिंदगी में बहुत ही कठिन समस्या आई Police case and problems which is of that level. और बहुत सारे केसेस वगैरह हुए और वो परिवार बड़े तनाव से गुजर रहा था। They really went through a bad time. वो बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे थे। We prayed about it. हमने उसके लिए प्रार्थना We की। didn't know who it was. हम नहीं जानते वो कौन था। We prayed about it and we believe that God will do a miracle in their life. हमने प्रार्थना की और विश्वास किया कि परमेश्वर कुछ अनोखा करने वाले हैं उनकी जिंदगी It में। didn't take even 7 days for the testimony to come to our church saying that family is out of that phase and
the happiness is restored back in their family. और 7 दिन भी नहीं लगे परमेश्वर को उनकी काया पलटने के लिए। वो परिवार बिल्कुल स्वस्थ है और उस समस्या से मुक्त हो चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। इसके लिए वो परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते If हैं। you believe in God, God does not need even 7 days. He just needs one moment to change अगर that आप situation. परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनको 7 दिनों की जरूरत नहीं, बस एक क्षण की आवश्यकता है। Amen. आमेन। If you're waiting for your breakthrough, अगर आप अपनी ब्रेक थ्रू के लिए इंतजार if कर you're रहे waiting हो, for your answers, अगर आप अपने प्रार्थना का उत्तर पाना चाहते hold हो, on to His promises. परमेश्वर के वायदे को थामे रखें। It's my experience, and out of my experience, I'm saying that He will not let you down. और ये मैं अपने तजुर्बे से कहता हूँ कि परमेश्वर आपको खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे। Amen. आमेन। I want to see restorations happening in the family. और मैं देखना चाहता हूँ कि परिवारों की जिंदगी में बढ़ोतरी हो, वो मेल मिलाप के साथ रहे। We want to see financial stability coming back to the family. हम देखना चाहते हैं कि आर्थिक रीति से लोग स्वस्थ हो रहे We हैं। want to see health being restored in their हाँ। in families, in people's life. लोगों की जिंदगी में, परिवारों की जिंदगी में उनको अपना आरोग्य फिर से तंदुरुस्ती में वो पाए। We want to see peace coming back to the family and enjoying a life that Jesus wants you to live. हम चाहते हैं कि कईयों के परिवार में शांति फिर से बनी रहे It जो will. यीशु मसीह देते It हैं। will happen. और ये होकर रहेगा। It will happen. वो जरूर होगा। Because we are His people. क्योंकि हम उनकी प्रजा हैं। And we hold on to His promises. और हम केवल उनके वायदों को थामे रखते And His हैं। promises are not just fake promises like men. और मनुष्य की तरह वो वायदे नहीं करते। When He says something, when He promises something, जब परमेश्वर हमसे वादा करते हैं, it will come to pass. वो जरूर पूरा होकर रहेगा। Your time is coming. आपका भी वक्त आ रहा है। Amen. आमेन। Last week, my family also went through a time of distress. और 2 हफ्ते पहले मेरे परिवार में भी समस्या रही। As a family, we've been slightly strong, not slightly, but we've been strong enough against this sickness called COVID. और परिवार के रूप में हम बड़े स्वस्थ महसूस करते थे, हम इसका विरोध करते थे। I have been against it, and I'm still against it. और मैं इसका विरोध करता हूँ। My father has been against it. और मेरे पिताजी भी इसका विरोध करते हैं। We strongly opposed every scheme of the devil. और हम शैतान के सभी तंत्र को उसको दुत्कारते थे। And one thing that we believed, और एक बात जो हमने विश्वास किया, even if it comes, even if it touches us, अब भले ही वो हमें छू ले, it cannot claim us. वो हम पर हावी नहीं हो सकता। Amen. It cannot claim us. वो हम पर हावी नहीं हो सकता। And that's exactly what happened. Last week, my family was infected with this virus. और पिछले हफ्ते मेरे परिवार में ये कोविड-19 हुआ। It was my sister first. और पहले मेरी बहन को हुआ She था। got admitted in the hospital. You know about it. और वो अस्पताल में थी, आप जानते हो उसके बारे में। Again, during the fasting prayer, we did pray for her. और उपवास प्रार्थना के दौरान हमने उसके लिए प्रार्थना Few days की। later, we come to know that my parents are also infected with this. और कुछ ही दिन बाद हमें पता चला हमारी मम्मी पापा भी बीमार है। That one, about 5 or 10 minutes when I heard that news, और जब वो 5-10 मिनट का वो क्षण था जब मैंने इस न्यूज़ को सुना, I was broken. मैं टूट चुका था। But after 5 minutes, I tried to remind myself, लेकिन उस 5 मिनट के बाद मैंने अपने आप को स्मरण दिलाया, I don't serve a dead God. मैं एक मृतक परमेश्वर की सेवा नहीं करता। I don't serve a God who does not listen. और मैं उस परमेश्वर की सेवा नहीं करता जो सुनता नहीं है। My faith was not on a God who is just made out of stories. और मैं किसी परमेश्वर की सेवा नहीं करता जो मनगढ़ंत कहानी से बने हैं। My God is a God who paid a price with His blood और to मेरे redeem me. परमेश्वर ने मोल दिया है, अपने लहू के द्वारा मुझे खरीदा And है। by His stripes we are healed is what we believe. और उनके कोड़ों के मार से हम अपनी चंगाई को पाते हैं, ये मैं विश्वास My करता sister हूँ। is back from a hospital. और मेरी बहन वापस आ चुकी है My अस्पताल से। parents' health is much better compared to what it was 2 weeks ago. और 2 हफ्ते पहले से काफी बेहतर है मेरे मम्मी पापा। Really want to thank God for what He has done. इसके लिए हम केवल परमेश्वर का धन्यवाद करते Thanking हैं। you, church, for the time that you've taken to pray for us. कलीसिया बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए प्रार्थना करते Truly हैं। means a lot. और परमेश्वर ने वाकई में हमारी प्रार्थना सुनी। Amen. आमेन। Pastor Presti and family also was in Kerala last month. पास्टर प्रेस्टी और परिवार पिछले 1 महीना केरल में थे। They went there. They also fell sick for some time. और वहां जाकर वो बीमार पड़े थे थोड़ी But देर God के लिए। healed them. लेकिन परमेश्वर ने उन्हें चंगाई They are दी। back there with us today.
वो फिर लौटे हैं, हमारे संग है आज। And it's good to be back and good to have Presti on worship as well. और बहुत ही अच्छा लगा पास्टर प्रेस्टी को भी वर्शिप करते हुए। Thanking God for His faithfulness over our lives. परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। Coming back to the special day, और फिर से हम स्मरण दिलाते हैं आज का दिन खास है। I want to take a moment and celebrate the birthday of a young man who has been instrumental over the years. और मैं ये क्षण लेना चाहता हूँ एक नौजवान के बारे में कहने के लिए जो हमारे जिंदगी में बहुत ही कार्यशाली रहे हैं। He transformed lives, उन्होंने जिंदगियों को परिवर्तित किया है demonstrated Christ-like love, और यीशु मसीह जैसे प्रेम को उन्होंने दर्शाया है। a role model for young and old. और बुजुर्ग और नौजवानों के लिए वो एक रोल मॉडल रहे It's हैं। none other than our pastor, Nainan Jose. और वो है हमारे पासवान नैनन जोस। He is celebrating his birthday today, guys. पास्टर नैनन अपने बर्थडे को मना रहे Well, I हैं। can't see the screen, but if you're on YouTube, if you're on Facebook, please wish him, please make him feel that we really miss him. और अगर आप YouTube या Facebook से हमें देख रहे हो तो आप जरूर उन्हें मैसेज कीजिएगा और जरूर कहिएगा कि हम उन्हें मिस कर रहे हैं। Yeah. Amen. And he's one person who's impacted so many lives. और वो एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने बहुतों की जिंदगी में उनको परिवर्तित किया है। Now, church, listen to this very carefully. कलीसिया इसे ध्यान से सुने। He's one person who hates social distancing. और वो एक व्यक्ति है जिन्हें सोशल डिस्टेंसिंग से बहुत दिक्कत I होती am है। not talking about COVID social distancing. और वो मैं कोविड के बारे में नहीं कह रहा हूँ। He wants people around. He wants his flock around. He wants his people around और always. वो हमेशा चाहते हैं कि उनके लोग कलीसिया के लोग हमेशा उनके आसपास घिरे रहे। If there is one person, one man who is affected with the social distancing, that is our pastor. और अगर एक व्यक्ति जिनको सोशल डिस्टेंसिंग से बहुत दिक्कत हुई है वो हमारे पास्टर है। Pray that we will all come together and we'll be able to worship the Lord and that will just give him joy. और प्रार्थना करें कि बहुत ही जल्दी ये सब कुछ टल जाए और एक साथ मिलकर हम आराधना के लिए एकत्रित हो You पाए। know, be it during his working days, even if it was a team. और भले ही जब वो कामकाज करने वाले दिनों में जब वो ऑफिस में थे उनका टीम हुआ करता था। You know, sometimes he goes out just to buy something and he still will ask us, you want to come along? और वो बस ऐसे ही घूमने के लिए चलते थे तभी भी वो हमको लेकर ही चलते थे। Likes people around. और वो हमेशा चाहते हैं कि लोग उसके आसपास रहें। Amazing man of God. और परमेश्वर के बहुत ही अभिषेक दास है। If you are not meeting him, अगर आप उन्हें नहीं मिल रहे हो you are making him feel depressed. और आप उन्हें मायूस जरूर कर रहे If हो you're feeling guilty, और अगर आप गिल्टी do something about it. और उसके बारे में कुछ तो जरूर कीजिए। Amen. So we Hallelujah. have a small tribute that we have for him. और उनके लिए एक छोटा सा ट्रिब्यूट है, छोटा And सा Pastor, I वीडियो know क्लिप you're है। watching us. हम जानते हैं पास्टर आप हमें देख रहे हो अभी। So a small little digital surprise during this period. और एक छोटा सा डिजिटल सरप्राइज हम आपको देना चाहते हैं। Are we ready for that? और क्या हम तैयार हैं? Go ahead. I'm sure each one of you can relate to what the video is saying. मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब रिलेट कर सकते हैं उस वीडियो से। Every word that is written there, और हर एक शब्द जो उसमें लिखा है। Pastor, you need to know that it's come from different people in the church. पास्टर आपको ये जानना जरूरी है कि कलीसिया के अलग-अलग लोगों ने दिया है उसको। It's every word, every sentence is coming out of the deepest part of the heart. और उसका हर एक वाक्य हमारे हृदय के गहराई से आपके लिए है। Yeah, we wish you were here today. और हम चाहते थे कि आप हमारे संग हो। But nevertheless, you enjoy and have a good time there.
लेकिन हम आपको बेस्ट विशेस देते हैं और बहुत ही अच्छा वक्त अपने परिवार के संग Because we बिताएं। know that when you're coming back, you'll come back with multiple power. You'll come back with a He-Man, like a He-Man. और हम जानते हैं कि जब आप वापस आएंगे एक हीमैन की तरह आएंगे, बहुत सारा सामर्थ्य लेते हैं। Yeah, God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Your life is a blessing to each one of us in the church and us as well. आपकी जिंदगी हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए बहुत अहमियत रखता है। We are so glad that we have a pastor like you. हम बहुत ही आनंदित है कि हमारे पास एक पासवान है आपके समान। Amen. God आमेन। bless you. परमेश्वर आपको बहुत Amen. आयत रीति से आशीष Without दे। taking any more time, we'll move into the offering. और ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, अभी हम ऑफरिंग की ओर जाएंगे। Yeah. Before that, I want to just introduce two men of God who's come to our church today. और उसके पहले हम दो परमेश्वर के जो दास है उनको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। And they've been part of the Gideon International Ministries. और ये परमेश्वर के दास है जो गिडियन इंटरनेशनल मिनिस्ट्री से है। We have Brother Bijoy, और भाई बिजॉय हमारे बीच है who will be sharing the word with us. जो वचन के साथ हमारी बीच सेवकाई करेंगे। And his co-worker Ranjit Dhalmani, who will be taking us through few things that the ministry is doing. और उनके संग है भाई रंजित जो हमें उनकी मिनिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देंगे। We are glad that you came and you are with us today. हम बहुत ही आनंदित है कि आप हमारे संग हैं We आज। believe that God will enable you to speak His heart. हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के हृदय के बारे में कहने के लिए आपकी सहायता परमेश्वर करेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Wherever you are, can we just rise up and we'll just pray for the offering. और जहाँ पर भी आप हो कृपया खड़े हो जाए, हम ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, we just thank you and praise you for this wonderful time. Amen. Once again, Lord, we come to your presence, thanking Yes, you Jesus. for every good thing that is in our lives, Lord Father. Lord, if we were to do with our might, if we were to do with our efforts, it wouldn't have been possible, Lord. Everything that we enjoy today, everything that we call a blessing today, Amen. it's because you blessed us, Yes, Lord. It's Father. because you gave us, Lord Father. And Lord, we want to return to you with Yes, Jesus. what you deserve, Lord. Amen. What you deserve, Lord. Yes, This is yours and this belongs to you, Lord Father. Lord, as we hold our offerings in our hand, I pray that you would receive it, accept it, and bless it and multiply it in the days to come, Lord Father. Lord, I pray for the people who lack or who are going through financial difficulties, and even with that, if they're taking a step like this, Lord, you will honor them, Lord Father. I pray that you would bless them and you would be with them and you would make them experience your power and your faithfulness in their lives, Lord Father. I submit everything in your hands in Jesus Christ's most holy name, I pray. Amen. Amen. Details to give your tithe and offering is right now coming on your screen. So please go ahead and give the best to the Lord this morning. And pause for a moment. Take a deep breath and look. Consider what the Lord has done for us. Angels who sing eternally and raise the loudest shout you ever could. And God has come to deliver, and He has come to save. Out of His great love for us, and this salvation came.
salvation. Amen. God, you are great and glorious. Lord, you amaze, so marvelous. Lord, He's so high, yet dwelling among us. And God, we want to sing for you always. We'll sing it for the last time. And God, you are great. Shout it out. And glorious. Oh Lord, Lord, you amaze, how marvelous. Lord, He's so high, yet dwelling among us. And God, we want to sing for you. And God, we want to sing for you. And God, we want to sing for you always. Come on, wherever you are, give a shouting praise unto God. Amen, 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 amen. Let's be ready to receive the word of God. We want to invite our brother Bijoy to come and share from the word of God. Amen. Should we check, mic check. Good morning, church. Hallelujah. Praise the Lord. It's a great joy to be here this morning. And I bring greetings to you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. My name is Bijoy and I live in Borivali. I'm not a pastor, just to update you. I'm just a member, part of a church, worshiping in Borivali area. There are a few things that I would like to share this morning from the Word of God, to share some thoughts. And I've taken a very, very familiar passage for the scriptures. That's John chapter 4, words 26 to 4 to 26, and then verses from 39 to 42. But I will not be reading those. I'll try to speak in Hindi. But I want you to, probably you would have heard this message several times. You've read this passage several times. You heard different messages from people from several times. So what I want you to do is just put your finger on those verses, because I'm going to make constant references when I share the word and going forward. So I originally speak English, but today I will try to speak in Hindi. If my Hindi is not that great, please excuse me. I hope you will bear with me. It's a great joy to come here this morning and worship with you after a very long time, ever since the lockdown happened. And so nice to hear testimonies from the church about what God is doing in your midst. And I thank and praise God, especially it's a wishing of happy birthday to Brother Limson, Pastor Jose Nayanar, wherever you are. I'm sure you're watching us. I don't know what the reason you're not here today, maybe because we are coming and you want to give us a treat. I don't know. Just kidding. Yeah, I hope God is good and wherever you are, safe and sound with your family. So I sincerely thank the pastor for giving this opportunity to come here this morning and share from the word. I know a couple of people, Moses, Plejo, and Plaji. Several of them I don't know. We are not here, so I might know them, seeing their faces. But it's a great joy that I share with your pastor around 20 years plus, that I know him and ever since, and he's become a pastor and he's doing a great job. God bless him. Yes, coming to the word of God, I just want to quickly just narrate it, Sadha, because I want to use Hindi. So I will just narrate quickly the story. ये कहानी हम देखते हैं अध्याय 4 जो यूहन्ना का है, जहाँ पर यीशु मसीह एक महिला जो सामरी स्त्री कहलाती है, उसका परिचय हम जानते हैं कि वो व्यभिचारी स्त्री है, और यीशु मसीह आकर उससे मिलते, यीशु मसीह एक प्रवास कर रहा है. वो गलील नामक गांव में जा रहा है, गलील नामक शहर में जा रहा है, और शहर के बीच जो रास्ते में आता है सामरी जो नगर, और उसमें एक गांव है सुक्कोर.
अगर आप 4 से अपने उंगली रखकर पढ़ते रहेंगे, जैसे मैं वचन आपको बताता रहूँगा, तो आप शायद समझ पाएंगे बहुत आसानी के रूप में। और मैं कहूँ तो अब यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से आकर उसका मुलाकात होता है। अगर मैं बोलूँ तो ये दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनकाउंटर एट एन ऑर्डिनरी वेल अबाउट जीसस मीटिंग विद दिस वुमन, and then there's a life changing moment in the life of that woman. She never comes back, or she doesn't go back to her old profession. So what is that? यही मैं आपको अब बताना चाहता हूँ। तो अब ये जो इतिहास दिखाता है कि गलील जाने के लिए यीशु मसीह जब निकलता है तो ये शॉर्टकट है सामरी। यीशु मसीह, अगर आप देखो, यहूदा लोग और इस सामरी में बहुत अंतर था, तो वो लोग नहीं उनके साथ अच्छे रिश्ते रखते थे, तो शायद वो करता कि ये शॉर्टकट को छोड़ दे। अक्सर यहूदी लोग यही करते थे और वो घूम कर गलील में जाते थे, लेकिन यीशु मसीह उनके साथ था, चेलों के साथ था। और यीशु मसीह ने जब प्रवास शुरू किया, उसने पहले से तय किया हुआ होगा कि ये सामरी स्त्री से उसका आज अपॉइंटमेंट फिक्स किया गया है। और हम देखते हैं जैसे वो आगे बढ़ता है तो एक गांव आता है सामरी में जो सुकुर है, जब हम वचन में पढ़ते हैं। और सुकुर वो जगह है जिसमें याकूब को दिया गया था उसका जो ज़मीन था, और उस याकूब का एक कुआं भी वहाँ था। और ये जो सामरी स्त्री है इस गांव में रहती है, और यीशु मसीह वो लोग चलने का जो प्रवास में उसे प्यास लगता है, और वो आप आता है जो कुआं है उसके आकर सामने बैठ जाता है। और उसके चेले यीशु को बैठते हुए थकावट में देखकर बोलते हैं, हम जाते हैं और भोजन लाने के लिए, और कहाँ जाते हैं। ये समय जो अकेलापन है, यीशु मसीह उस वेल के सामने, उस बावड़ी के सामने बैठा हुआ है। और जब ये महिला यीशु मसीह दूर से देखती है, ये स्त्री चलकर अपना घड़ा ले पानी भरने आ रही है। और आगे हम देखेंगे इस कहानी में इस मुलाकात है, और ये समय दिखाता है ये 6 बजे, मतलब 6 प्रहर, जो इजरायली के समय मतलब दोपहर के 3 बजे, अगर हमारे समय में अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह के चेले उसे छोड़कर भोजन लेने जाता है, और यीशु मसीह थके हाथ में इस स्त्री के पास आता है। और मैं इस शीर्षक देना चाहूँगा, यीशु मसीह जो है जीवता पानी, वो आज मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ। तो मैं आपको पीछे कुछ और बातों को लेकर चलता हूँ। दिसंबर की उस दिन 26 तारीख 2004 एक बड़ा जो भूकंप आया यहाँ पर, और हम जानते उसे कोई नाम नहीं था। बाद में लोगों ने जो इंडियन ओशन को टकराता है, उसके अर्थ को, क्रस्ट को ब्रेक कर देता है, और वो उसे हम सुनामी कहते हैं। इससे पहले कोई लोगों ने सुनामी के बारे में नहीं सुना था, लेकिन ये एक बड़ी पानी का जो प्रहर है 80 फीट के ऊंचाई तक आकर पूरे क्रैश करके जो शोर है उसे तोड़ फाड़ कर कर वो आगे आता है। और ये हम जल प्रलय कहते हैं। ये इंडोनेशिया, इंडिया के थोड़े मद्रास के जगहों में और श्रीलंका में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। करीब 3 लाख संख्या में हजारों लोग बिखर गए और मर गए। और हमने देखा बाद में इसे कहा गया ये सुनामी है। और मैं जानता हूँ कई फिल्में बनाई गई सुनामी को दिखाने के लिए, क्योंकि ये एक बार का दिखना था, तो लोग अब देखकर पहचान पाते ये कोई साधारण बात नहीं थी, ये है सुनामी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि एक जगह आप देखोगे इतना सारा पानी आता है और वो लोगों को नाश करता है, और विपरीत दूसरी जगह में देखो तो पानी अगर नहीं मिला हमें तो हम प्यास से भी मर सकते हैं। तो ये 2 विपरीत है। अब यीशु मसीह को प्यास लगी है और वो पानी पीने के लिए कुएं में बैठी है, और स्त्री आती है अपना घड़ा लेकर पानी, और यीशु मसीह उससे मांगती है, क्या तुम मुझे पानी मिला सकते हो। जैसे हमारे लिए भोजन है, जैसे हमारे लिए हवा है, उसी तरह पानी भी एक महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन के लिए। रिसर्च कहता है अगर एक व्यक्ति बिना खाना 40 दिन भी रह सकता है, लेकिन बिना पानी सिर्फ 3 दिन रह सकता है, उससे अधिक नहीं। तो आज हमारा जो शीर्षक है यीशु मसीह जो जीवता पानी है, और मैं 3 चीजों को आपको तुरंत बताना चाहूंगा मेरे समय के अनुसार। पहली बात, आप ले जाएंगे आज इस घर पे या देख रहे हैं जहां कहीं भी हो, कि आपको ये जीवता पानी की जरूरत क्यों है। दूसरी बात कि ये जीवता पानी कहां से आ रहा है, इसका स्रोत क्या है। और तीसरी बात, ये जीवता पानी हमारे जीवन में क्या प्रभाव ले आ सकता है। तो हम जानते हैं जो प्यास है सामान्य बात है। एक व्यक्ति ने, प्रचारक ने ऐसे कहा था, एक मनुष्य में ऐसा एक जो खालीपन रहता है जब तक वो जब टूट गया परमेश्वर के संबंध के बाद, और जब तक परमेश्वर स्वयं आपके जीवन में आए नहीं, तब तक वो खालीपन पूरा नहीं हो सकता है। तो हम देखेंगे कहानी सामरी स्त्री के बारे में। वो पहले यीशु मसीह से मुलाकात करती है और यीशु मसीह उससे एक वार्तालाप शुरू करता है।
ये जो वार्तालाप अगर देखोगे पवित्र शास्त्र में सबसे बड़ी दर्ज की हुई वार्तालाप है एक महिला के साथ यीशु मसीह का, क्योंकि अनेक जगहों में यीशु ने मंदिर में फलाना जगहों में लोगों से संपर्क किया, बातचीत किया, लेकिन ये जो है दर्ज की गई है। तो आज मैं भी आपसे वार्तालाप करूंगा और परमेश्वर आपसे बातें करेगा। वो आपको प्रेरणा देगा कि आपको किस तरह से जीना है, आपको किस तरह से मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवन में और करीबी रूप में जाना है। और परमेश्वर आपको आशीष दे। ये जो बातचीत मेरे लिए और आपके लिए आज सुबह, और ये जो प्यास है मैंने कहा, ये प्यास आत्मिक प्यास है। ये प्यास हम शायद बिस्लरी के अच्छे बॉटल या फलाना ब्रांड लेकर पी ले तो भी हमें शांति या तृप्ति नहीं दे सकता है। कितना भी बड़ा हो, कितना भी स्वस्थ हो, कितना भी साफ हो, शायद हम सोचेंगे हमारे मित्र हो गए, शायद मित्र के द्वारा हम उस खालीपना को पूरा कर सकते हैं। क्या आप बोलेंगे मेरा अच्छा अगर नौकरी है या मेरा अच्छा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, सब कुछ मुझे आदर सम्मान देता है, मिलता है, लेकिन ये जो प्यास है जो बुझाए नहीं जा सकता है, क्योंकि ये प्यास को आपको बुझाने के लिए यीशु मसीह को आना आपके जीवन में ज़रूरी बनता है। और वही जो जीवता पानी यीशु मसीह आज कहता है वो आपको देना चाहता है। फिर हम वापस कहानी में आ जाएंगे। अब यीशु मसीह आगे बढ़ रहा है समरिया में, और वो नदी जो वचन 7:14 में हम देखेंगे, अगर आप मेरे साथ चल रहे हो तो ये एक साधारण समय नहीं है कोई महिला को दोपहर के 3 बजे पानी भरने आना वहां पर। इसके पीछे कोई कहानी है, पृष्ठभूमि है, क्योंकि यीशु मसीह इस स्त्री से पूछता है मुझे पानी पिलाओ, और स्त्री का पहला जवाब है आप यहूदी और आप मुझसे पानी मांग रहा हो। यहूदी और मेरे और आपके बीच में बड़ा अंतर है, बड़ा वाद विवाद की बातें हैं, लेकिन यीशु मसीह कहता है उस उत्तर देते हुए कि तू ये जो पानी पिएगी तो ये तेरे प्यास बुझाएगी, लेकिन तुझे वापस प्यास लगेगी। लेकिन जो पानी मैं तुझे देना चाहता हूँ वो तेरे कभी प्यासा नहीं रखेगी। वो जो पानी है अनंत काल जीवन का, वो जो पानी है परमेश्वर के उभरते हुए जो जीवता जल है, वो उसे देना चाहता था। तो मेरे पहले प्रश्न में हम आएंगे कि ये पानी की जरूरत जीवता हमें क्यों है। यीशु मसीह कहता है किसको जरूरत है? सभी को। कहता है जीवता पानी, मतलब मेरे और आपको सभी को इसकी जरूरत है, वचन में कहता है। एंड मैं बोलता हूँ, आप भी बोल रहे हो, आप भी सुन रहे हो, आपके अर्थ गिर्द जो भी है सभी के लिए ये जीवता पानी जरूरी बनता है, क्योंकि ये आंतरिक जो हमारी प्यास को सिर्फ बुझा सकती है जब हम इस जीवता जल को पी सकते हैं। तो कोई मायने नहीं रखता है आप कोई गरीब हो या अमीर हो, आप कोई भी जात विवाद के हो, आप कोई भी आप बुजुर्ग हो या आप जवान हो, धार्मिक हो या नहीं हो, आप गोरे हो काले हो, कोई फर्क नहीं लगता है, क्योंकि ये जो आत्मिक प्यास है हर एक के जीवन में है, और वो जीवता पानी सिर्फ यीशु मसीह देकर वो पूरा कर सकता है आपके जीवन में। शायद हम सोचते होंगे अरे मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरा तो सब अच्छी तरह सेट है, मेरा अभी दिन काफ़ी कुछ मैंने कर लिया, अब मुझे आराम करना है, मेरा अभी उम्र हो गया है। ऐसे हम सोचते रहेंगे, सब सोचते रहेंगे हमने अच्छी तरह अपनी संपत्ति को इकट्ठा कर लिया, आने वाली पीढ़ी के लिए हमने कर दिया है। अगर हम देखेंगे लूका का 12 अध्याय 17 से 20 जो वचन है, मैं पढ़ना नहीं चाहूँगा, वहाँ पर एक दृश्य है, एक व्यक्ति के बारे में कहानी इस तरह लिखी गई है। वो कहता है उसका जो दिन आ गया है वो अब जाकर अपने आप को परमेश्वर के सामने हवाले करते हुए कहता है अब मैं इतना धनवान बन गया हूँ, मेरा जो ये गोदाम है वैसे मैं तोड़कर और बनाऊंगा और वहाँ पर भी संपत्ति इकट्ठा करेगा और मेरी पीढ़ी लोग आराम करेंगे, और मैं क्या करूँगा, खाऊंगा पीऊंगा और आराम करूँगा। लेकिन उसी रात परमेश्वर का दूत उस करा कर बोलता है कि आज तेरा मरने का दिन है। तो वो एकदम संकोच में पड़ जाता है। इसी तरह हमारा जीवन में हम सोचते हैं सब कुछ हो गया, अब आराम का समय है, लेकिन परमेश्वर की बुलाहट, उसके हमारे पास आने का, मुलाकात करने का वो समय का कोई नियुक्त किया नहीं है। और वो वचन के आगे 20 में अगर वचन में करते वो कहता है कि मूर्ख हो तुम ऐसे सोच रख रहे हो। शायद हमारे जीवन में भी हम कई तरह से मूर्ख कहलाए जाएंगे हमारे सोच में, लेकिन हम नहीं जानते परमेश्वर क्या करना चाहता है। हम मुड़ेंगे, सामरी स्त्री जब है वो जानती थी कि उसे प्यास लगी है, वो पानी की ज़रूरत है और ये पानी उसकी प्यास को बुझाएगा, क्योंकि ये गर्मी का मौसम था, 3 बजे का समय था। और ये इसकी पृष्ठभूमि में देखेंगे कई सारी चीज़ें जो महिला उस समय आने का कारण है। पहली बात है कि सामाजिक तौर से उसे समूह में अच्छा नाम नहीं, क्योंकि उसका चरित्र गलत है। दूसरी है भावनात्मक तौर से लोगों के रिश्ते के सामने उस बातें है उसके जीवन में जो एक बदरार है उस समय में आने के लिए उस पानी पीने। वचन 9 में अगर हम अपने उंगली को रख रहे हैं तो परमेश्वर इस चीर फाड़ करके हर एक धर्म को नीचे निकाल कर, हर एक जो दीवार को
तोड़कर वो आगे यीशु मसीह उस सामरी को कहता है कि मुझे तू पानी पिला। मेरे सामने तेरे रीति रिवाज, कोई भी बातें हमारे बीच में उस संबंध को तोड़ने के लिए नहीं ला सकता है। कुछ भी परमेश्वर राज्य में आपको अलग नहीं किया सकता है। वो कहता है तुम आ सकते हो, तुम उस पानी को मुझे पिला सकते हो और मैं उसे पी लूंगा। यही परमेश्वर हमारे लिए एक उदाहरण बना। हम एक नई जो करार के कलीसिया कहलाते हैं, परमेश्वर मेरे लिए उदाहरण बनकर कहता है कि तुम अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से प्यार करो जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूं। मतलब ये हमारी सामाजिक जो तरह की दृष्टिकोण है लोगों के प्रति, परमेश्वर कहता है अपने कलीसिया में यही नहीं चलेगा। वो चाहता है कि हम सब साथ मिलकर उसके प्रेम में आगे बढ़ता रहे। और क्योंकि हमारा आज और सभी लोगों का एक ही सृष्टिकर्ता है, वो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। और यीशु मसीह का आज्ञा है कि हम एक दूसरे से प्रेम करो जिस तरह से उसने हमारे लिए उदाहरण बताया है। तो ये सामाजिक बातें हैं, भावनात्मक बातें हैं, ज़रूरतें हैं। इस सामरी स्त्री के गरीब में जिस तरीके से वो चरित्र से आगे बढ़ रही है, उसे सूखापन, उसे खालीपन, उसे अकेलापन कर कर वो उस समय उस कुएं में पानी पीने के लिए आ रहा है। और मैं बहुत बताऊं आपको, गिडियंस जो है हमारे सामने, वी हैव अ ग्रेट मैंडेट टू कंप्लीट बिफोर अस, टू रीच आउट टू द लॉस्ट, एंड वी हैव हैड अ प्रिविलेज टू डू टू द, यू नो, वी आर सो प्रिविलेज टू बी बॉर्न इन द नेशन ऑफ इंडिया। अगर मैं कहूँगा, क्योंकि हमारे लिए जो लोग हैं इतने सारे हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है जाओ तुम्हारे इस बीज को फैलाओ ताकि लोग जाने कि सच्चा मसीह कौन है। और दूसरी बात, हमारे पास जो बीज बोने का जो अवसर है, लोग इतने सारे हैं और वो कटने का समय है। परमेश्वर कहता है कि बहुत सारे हमारे लिए, गिडियन के लिए बड़ा जो कार्य बाकी रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर हमको मदद कर रहा है। परमेश्वर का जो प्रेम हमारे लिए और आपके लिए जो दर्शाया गया उस क्रूस में, हमारे पाप को उसने लाद दिया उस पर और हमें आज़ादी दी, हमें जो पवित्रता में लाया, उस परमेश्वर को, अगर हम एक भी व्यक्ति होता, अगर वो हम पापी होता है, फिर भी परमेश्वर जाकर हमारे लिए उस क्रूस पर बलिदान देता। ये आशा रखते हो कि एक दिन तुम मुझे जानोगे, एक दिन तुम मुझे अपनाओगे, एक दिन तुम अपने लिए अपना जीवन मुझे दोगे और अपना जीवन आगे बढ़ाओगे। तो परमेश्वर, पवित्र शास्त्र कहता है, जब भी वो भीड़ को देखता था यीशु मसीह, तो उसके हृदय में एक बोझ लगा। उसको जब भीड़ देखता था, उससे लगा कि उनके बारे में चिंता लगी। और वचन कहता है वो हमेशा भीड़ को देखता है, उसने करुणा दिखाई। उसने आज यीशु मसीह ने में हमारे और आपके जीवन में भी उस दया को दिखाया है, ताकि हम जाने। तो क्योंकि हर एक व्यक्ति हमसे मिलता है, हमारे संपर्क में, वो देखेगा कि तू परमेश्वर को नहीं जानता है तो हमारे लिए चिंताजनक है। क्या उसका मरण में, क्या वो स्वर्ग पहुंच पाएगा, क्या उसे सुसमाचार मिला है कि नहीं, ये हमारी चिंता है गिडियंस के ओर से। और एक हम परमेश्वर को अपनाने के लिए, क्योंकि एक जो व्यक्ति परमेश्वर को अपनाएगा तो सारा स्वर्ग आनंद उठाएगा, वो परमेश्वर का वचन कहता है। आगे बढ़ते हमारी कहानी में भी, यीशु मसीह के पास स्त्री आई है। ये दोपहर का 3 बजे का समय है। शायद दूसरे महिलाओं के ऐसे वो सुबह का समय नहीं आ सकती, जहाँ पर दोस्त मिलकर हंसी खुशी घर के बारे में जिक्र करते हुए आकर उस सब लोग उस कुएं में आ जाएंगे और हंडी में पानी भर कर चले जाएंगे। ऐसा उसके जीवन में नहीं है, क्योंकि ये दोपहर का समय, सारे लोग जब आराम कर रहे हैं अपने घर में, उस समय सारे रोज रास्ते हैं जो खालीपन पड़ा है, उस समय वो स्त्री बाहर निकलती है। क्योंकि अगर दूसरे समय में वो निकलेगी तो लोग शायद उसको तिरस्कार करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, उसके ऊपर थूकेंगे। ऐसी उसके प्रजा है उस स्थिति उस महीने की। यीशु मसीह जानता था कि ये महिला उस समय उस कुएं के पास आएगी, और यीशु मसीह का जो मुलाकात तय की गई थी, वो उस महिला की प्यास को बुझाना चाहता था और अपना जीवता पानी देना चाहता था। और ये जीवता पानी जब कहता है, वो जीवता पानी वो महिला नहीं समझ पाती है, क्योंकि उसके साथ जो उसका दिन रहा है, उसका पृष्ठभूमि रही है, वो शायद किसी पर विश्वास नहीं कर पाती, क्योंकि कई जो पतियों के साथ अब बिना पति उसका ऐसा रहा है, शायद वो भरोसा नहीं करते। लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं तुझे जीवता पानी देगा, क्योंकि ये जो पानी आप पियोगे ये आपको समय के लिए, कुछ समय के लिए शांत करेगा, आपके प्यास को बुझाएगा, लेकिन मैं तुझे देना चाहता हूँ वो है जीवता पानी। वो तुझे कभी उस प्यास से ऐसे जीवन में नहीं रख पाएगी। तो हम देखते हैं जब यीशु मसीह उसे पूछता है तो वो बोलता है पानी, और वो स्त्री यीशु मसीह को देखते हुए बोलता है अरे आपके पास तो घड़ा भी नहीं है पानी भरने के लिए, कैसे आप पानी पियोगे। उस जमाने में ऐसा था, जो कुआं होता था हमारे से ऐसे नहीं कि हम रस्सी से खींचकर पानी लेते थे। उस समय में कुआं होता था जहाँ पे सीढ़ियाँ रखती थी, लोग नीचे उतरते थे और पानी को लेकर ऊपर आता, एक परिश्रम था। लेकिन ये महिला जो थी, स्त्री जो सामरी, उसने किया निर्णय कि हाँ मैं यीशु मसीह को पानी लूँगा। और जब यीशु मसीह कहता है जीवता पानी, वो सोचती हाँ शायद मुझे इस जीवता पानी की ज़रूरत है।
ज़रूरत है। अब ये जो आता है, क्योंकि ये जो प्यास उसे बुझाना था उसके जीवन में, और यीशु मसीह जब बोलता है जीवता पानी, वो शायद समझ नहीं पाती कि जीवता पानी और ये पानी क्या है, लेकिन परमेश्वर के वचन में बहुत सिद्धि रूप से कहता है कि ये जो पानी है वो अनंत कालिक जीवन में आपको सुखदाई प्रोवाइड करेगा। और जब सोचती है तो ये महिला शायद सोचती है, अरे ये तो चमत्कारिक पानी के बारे में कुछ कह रही है, क्या अच्छी बात है अगर मुझे ये पानी मिल जाए। मुझे अगर मैं सोचूं तो अरे मुझे रोज ये कुएं के पास आना नहीं पड़ेगा, या मुझे लोगों का तिरस्कार सुनना नहीं पड़ेगा, या मुझे मेरे जो पड़ोसी लोग चिढ़ाएंगे नहीं, मुझे बाहर जाना नहीं, हमेशा के लिए मैं ये जो जादू का पानी मैं ले लूँगा। उसी तरह हम भी शायद सोचते रहेंगे, हमारा भी जीवन में कई सारे बातें को हमको उसे फिक्स में लाना है। आप शायद सोचते रहेंगे, अरे मेरे पास एक नई गाड़ी आ जाए तो शायद समस्या थोड़ा हल हो जाएगा, या एक बड़ा घर ले लूँ तो मैं और आनंद पा लूँगा, या हम सोचते थोड़ा और ज़्यादा कमा लूँ, पैसे आ जाए तो मैं वेकेशन में जाऊँगा। ऐसे हमारी चिंता है। शायद कोई व्यवसाय करने वाला होता, थोड़ा और आमदनी करूँ तो मैं जहाँ मोहल्ले में रहता हूँ वहाँ से मैं हट कर कोई और जगह जाऊँ, क्योंकि मुझे इस मोहल्ले में इन लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है। ये हमारी चिंताएं हैं। जब हम कहते हैं शायद दफ्तर में काम करने वाले, मेरा ये बॉस है, रोज मुझे इसका सामना करना पड़ता है, इसका सुनना पड़ता है। ऐसे हमारी जो हम तुरंत चमत्कारिक बातों को हमारे जीवन में देखना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने कुएं के पास जाना है, जो आत्मिक कुआं है, जहाँ पर जो प्यास है उसे सिर्फ जीता पानी ही उसे पूरा कर सकता है। वचन 15-16 में आ जाएंगे। यीशु में से कहता है, जाओ, मैं चाहता हूँ कि तू अपने पति को बुला कर लाओ और मैं तुमको जीवता पानी देना चाहता हूँ। तब वो स्त्री कहती है, मेरा तो कोई पति नहीं हो। हकीकत में उसके 5 पति रह चुके, जब उसके साथ जो रह रहा है वो छठवां है। अब यीशु मसीह से वो मिल रहा है। तो यीशु मसीह ने उस स्त्री की जो मुद्दी बात थी वो था पाप, और उसको उसके सामने रखता है। और ये जो पाप ही है जो कारण बनता है परमेश्वर हमारे दरार में, पाप परमेश्वर से अलग होना। वचन 17 से 19 में देखेंगे, यीशु मसीह जब ये कहता है तो स्त्री एकदम स्तंभ हो जाती है। वो कहता है, वो गुस्सा हो जाती है, उसे पता नहीं किस तरह से उसके साथ प्रक्रिया करना है, कि यार यीशु मसीह ज़्यादा मेरे साथ पर्सनल बन रहा है, मुझे पूछ रहा है, ये सब बता रहा है। शायद वो चाहती तो कह सकती थी झूठ, लेकिन उसने झूठ नहीं कहा। उसने यीशु मसीह को कहा, हाँ आप जो बोल रहे हो वो सही है, मैं जिसके साथ रह रहा हूँ वो मेरा पति नहीं है। जो पाप का बोध उस महिला के जीवन में आता है, यही पाप का बोध हमारे और आपके जीवन में। यीशु मसीह कहता है पाप पाप ही है, उसके सामने कोई छोटा पाप बड़ा नहीं है, कोई समय नहीं है हम उसको यीशु मसीह को गुमराह करते रहेंगे। हम खेल खेलते रहेंगे कि हाँ मैं सही हूँ, मैं कर रहा हूँ सही है, मुझे लग रहा है, लेकिन पाप पाप के जगह पे रहता है। वचन 20 से 26 में हम जाएंगे तो वो कहानी के आगे बढ़ते हुए कहता है, वो जो महिला ये सुनकर कहती है, उसका टॉपिक जो वो कहता है आप तो नबी है, आपने ये कह दिया। फिर वो कहती है आगे बढ़कर अपने टॉपिक को बदल करता है, अरे आराधना कहाँ करना है, सामरी में करना है या दूसरे जगह में करना है, क्योंकि हम लोग और जगह आराधना के कहते हैं और आप कोई और जगह बता रहा है। क्योंकि वचन कहता है कि ये समय आ गया है कि हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। और ये आत्मा में जो आराधना करने की बात आता है, सामरी लोग जिनको सच्चाई नहीं था वो आत्मा में आराधना करते थे, लेकिन हम देखेंगे जो यहूदी लोग थे वो सच्चाई जानते थे, लेकिन वो आत्मा में आराधना नहीं करते थे। तो ये महिला करते, ठीक है कोई बात नहीं, जो होना था वो है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि ये समय आएगा पाप का, जब मसीहा आएगा मुझे ज़रूरत पड़ेगी, हमें सभी को ज़रूरत पड़ेगी। वो जब मुझे बताएगा कि ये पाप है, मुझे भी ठीक होना है, तब मैं ठीक हो जाऊंगा। क्या यीशु मसीह जो बातें कह रहा है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी बात है। और इस समय के लिए, क्योंकि जो पाप आपके जीवन में है वो आपके जीवन को परमेश्वर से सही करना बिना उसका कोई परिणाम नहीं है। इसलिए यीशु मसीह फिर एक बार दोहराता है, हम सारे शायद सहमत होंगे इस बात में कि परमेश्वर आएगा, हमारे पापमय जीवन में दुरुस्ती लाएगा। यीशु का उत्तर उस महिला के लिए कि मैं जो बोल रहा हूं वो ही है जो आप कह रहे हो मसाया। अब ये महिला पहला कहता है यहूदी, फिर कहता है आप नबी हो, फिर कहता है आप मसाया हो, और आगे हम देखेंगे वो जाएगा तो सारे गांव जानता है कि वो उद्धार करता हमारा परमेश्वर है। यीशु मसीह ने सोचो कि अपना परिचय, कई जगहों पे लोग पूछते हैं कौन है आप बताओ, लेकिन वो कभी जिक्र नहीं करता है। कुछ जगहों में उसने अपना जिक्र किया, आपकी पहचान बताया, लेकिन यीशु मसीह ने इस सामरी व्यभिचारी स्त्री जिसका कोई
मेल मिलाप नहीं है सामरी होने की, लेकिन यीशु मसीह ने अपना परिचय दिखाया। उसने कहा मैं ही जो हूँ आप जो सोच रही है। यीशु मसीह ने दावा किया उसके जो बातों पर, उसने कहा कि ये बहुत सारे साल पहले मूसा को जो परमेश्वर ने अपनी प्रकट की थी, जो जलने वाली आग के उस पेड़ के सामने, कि मैं जो हूँ जो सो हूँ। तो मूसा की उस बातों को कहता है जाओ इस्राएलियों से कहो कि मैं हूँ जिसने तुझे भेजा है। और आज परमेश्वर ने हमें और आपको यीशु मसीह के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है। यीशु मसीह का जो नाम है इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। और तुरंत ही जो सामरी स्त्री को हम देखते हैं विश्वास करते यीशु पर, वो कहता है कि तू सही कर रहा है, जो जीवता पानी है वो तू ही दे सकता है। और हमने देखा, हमारा प्रश्न मैंने बोला, जो जीवता पानी आने वाला है वो अनंत कालिक है, उसका सोत्र अनंत कालिक है। क्योंकि यीशु मसीह कहता है जो भी कोई इस पानी से पिएगा आप प्यासा रह जाओगे, जो सांसारिक है, लेकिन जो पानी मैं तुझे दूंगा जीवता पानी, वो तुम्हें हमेशा के लिए अनंत काल का उस प्यास को बुझाएगा। क्योंकि वो आपके पाप को आपके सामने प्रस्तुत करेगा। और वो जो मसाया वो है, जो वादा रखा हुआ, वाचा बांधा हुआ हमारा परमेश्वर, जो हमें हमारे पापों का माफ़ी देगा, वो हमें मुक्त करेगा, हमें आज़ादी देगा, और हमारे साथ उसके पवित्र आत्मा का जो वरदान देकर हमें अपने रोज में जीवन में हर एक समय में हमारे पाप में जीवन से आगे बढ़कर एक पुत्र और पुत्री परमेश्वर के बनने का मौका देगा। हालेलुया। मित्रों, यीशु मसीह, सिर्फ यीशु मसीह उस जीवता पानी को दे सकता है जो हमारे पापों को धो सकता है। यीशु मसीह सिर्फ हमारे उस प्यास को बुझा सकता है जो हमेशा के लिए रहेगा। और यीशु मसीह हमारे जीवन में और आपके जीवन में देखता और कहता है कि ये परमेश्वर की सच्चाई है आपके जीवन में। मैं भी हम सोचते रहेंगे क्या परिणाम हुआ। मेरा तीसरा प्रश्न जो है, हम वचन 29 से 42 तक अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक परिवर्तन होता है, हम देखेंगे ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो अछूत मानो सामरी स्त्री थी, अब वो एक सुसमाचारक महिला बन जाती है। वो जाती है भागकर यीशु के पास। जब उसके चेले आने लगते, वो भागकर अपने हंडी भी वहाँ पर खड़ा भी छोड़कर भाग जाती है। जो खड़ा जो भार था उसका, वो बोझ को वहाँ पर छोड़कर वो भाग जाती है और जाकर सभी लोगों को कहते हैं, गाँव वालों को, आओ देखो मैंने मसीहा को मिला है, आओ देखो मैंने मसीहा को मिला है। क्या विपरीत यहाँ पर लाता है। यीशु मसीह कहता है वचन के द्वारा, सामरी जो विश्वास करते थे, इस विश्वास महिला का, सामरी स्त्री का एक गवाही जो बन जाता है, सारे गांव यीशु मसीह को जान पाता है। क्या आप सोच सकते हो उस दिन में कितना बड़ा आनंद हुआ होगा स्वर्ग में, क्योंकि सारे गांव ने यीशु मसीह को जान लिया था और वो लोग स्वर्गदूत मना रहे थे खुशियां उस दिन का। तो हमारे लिए जो क्रूस है परमेश्वर का, जो जीवता पानी का सोत्र बहने के लिए हमारे सामने है, कि हम उसे जब पाते हैं वो उमड़ता हुआ, बढ़ता हुआ, gushing out, bringing eternal life to many others. That is what we share. The cross is God's own fountain of the living water. ये हमेशा ताजगी देने वाला, तुरंत होने वाला और आनंद से भरकर हमें परमेश्वर के कदमों में, उसके चरणों में ले आता है। और हम दावा कर सकते हैं उसके हर एक वचने हमारे लिए वाचा सो दिया गया है। दूसरा कोरिन्थी 5:17 में कहता है, जो लोग में मुझे अंगीकार किया उससे मैं नई सृष्टि बनाता हूँ। ये जो सोत्र है जीवता पानी का जो बह रहा है, ये पानी सिर्फ पानी ही कोई दर्शाता नहीं, लेकिन यीशु मसीह का जो लहू है, जो पानी हमें धोत कर शुद्ध करता है और हमें परमेश्वर की औरत है। तो परमेश्वर कहता है गो एंड जाओ और लोगों को बताओ परमेश्वर के जो प्यास के बारे में, जो बुझाने वाला प्यास, जो हमारे पापों से हमें शुद्ध करने वाला है, परमेश्वर से हमारे संबंध जो पाप से टूटा को फिर से बांधने वाला, जाओ। और ये बहुत आनंद का दिन स्वर्ग में उस दिन हुआ था। तो मैं अपने 3 मुद्दों को फिर से दोहराना चाहूँगा। पहली बात कि हमें जीवता पानी की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जीवन में पाप है, हमें शुद्धिकरण की ज़रूरत है हमारे जीवन में। दूसरी बात, क्या इसका सोत्र है जीवता पानी का, वो है जो परमेश्वर की ओर से आता है और हम जब विश्वास करते हैं वो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तीसरी बात, इसका प्रभाव क्या है जीवता पानी हमारे जीवन में। तो जो पाप है उसे हमें निकाल दिया जाता है, हमें मुक्त कर दिया जाता है, हमें आज़ाद कर दिया जाता है, और उसके बाद हमें उस सोत्र यीशु क्रूस है, यीशु मसीह का जीवता, उसके ओर हमें ले जाता है। तो ये जो परमेश्वर का शुद्धिकरण का जो कार्य है, उसके लहू से हमें धोकर और हमें फिर से ताजगी मिलाता है, आत्मा मिलाता है, और वो हमें आगे बढ़ाना चाहता है। तो मैं कुछ बात बताऊंगा। यीशु मसीह ने इस महिला के जीवन को बदल दिया और इस शहर का, इस गांव का पूरा भविष्य को बदल दिया। यीशु मसीह पहले इस सामरी स्त्री को ऐसे कहता है, अरे आप तो यहूदी हो। फिर आगे कहता है, अरे आप तो स्वामी हो। फिर आगे कहता है, आप तो यार नबुवक्त हो। फिर आगे कहता है, आप मसीहा हो।
और फिर इस गांव वालों के लिए उद्धार करता। ऐसे पहचान जान के परमेश्वर के पास उस स्त्री का जो परिवर्तन होता है, यीशु मसीह इसलिए नहीं है कि आपको बताऊं जो किसी और ने नहीं बताया या किसी और ने काम किया नहीं है पूरा, लेकिन वो आता है, वो इस महिला को कहना ना पड़ा अरे बी बॉर्न अगेन, उसने अपने हृदय में जान लिया इस बात को, उसे वो बोध लगा और खुद जाकर एक समाचार बने, एक तुरंत होने वाले जो परिवर्तन। और हकीकत में देखिएगा तो उसके पास 5 पतियां थी, 6 जिसके साथ रह रहा है, और जब 7वां यीशु मसीह है, पवित्र शास्त्र में 7 जो नंबर परिपूर्णता का दिखाता है, जब यीशु मसीह उसे मिलाप करता है वो पूरा हो जाता है। जो प्यास जो पाप से मुक्त करके उसे अपने पाप का बोध दिलाता है, और ऐसे समय में आता है उसके पास जहाँ उसको बहुत ज़रूरतमंद थी उसकी जगह में। हमारे और आपके भी जीवन में यीशु मसीह उसी समय में आता है जब हम घोर अंधकार में, जहाँ पर परमेश्वर के छुटकारा की हमें ज़रूरत है। और ये पाप से सिर्फ उत्तर है यीशु मसीह के पास उत्तर है। सारा गांव जान पाता है जब अब ये महिला जो हम कहेंगे इवेंजलिस्ट है, उसका अपना मिशन शुरू होता है, और उसका मिशन है जाओ लोगों को बताओ, आओ यीशु के पास आकर आप देख लो खुद, मैं नहीं बता रही हूँ लेकिन आओ, यही हमारा काम है गिडियंस का, लोगों को बताने के लिए सच्चा परमेश्वर क्या है। उसने एक मौके को खोल दिया आपके जीवन में कि आओ और जानो ये जो सेवियर ऑफ द वर्ल्ड है, यही जो आशा है हम जिसके पास पा सकते हो, उसके द्वारा उसके सामर्थ के द्वारा ये इस दुनिया को बचाया जा सकता है। इन हिम, थ्रू हिम, by him, and because of him we can have the salvation, the true living water in our life। जैसे गिदियन होने के सामने परमेश्वर की भलाई हमने बहुत अच्छी तरह महसूस किया। पिछले साल में हम बोरुली, कांदुली, मलाड में 10,000 से ज़्यादा अधिक स्क्रिप्चर को बांटने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, और परमेश्वर को धन्यवाद हो। एक आखिरी वचन में पढ़कर करूँगा, ये यहाँ पर एक वचन 35 से आप घर जाकर पढ़ेंगे। वो कहता है कि जब हम फसल बोते हैं तो कटने के लिए 4 महीना लगता है, उसके बाद हम कटनी करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है अपने आंखों को उठाओ और देखो, और जब लोग देखते हैं तो पूरा गांव यीशु मसीह के पास आता रहता है। तो हमें अपने जो दर्शन को है बड़ा करना है, सीमित नहीं रखना है कि सिर्फ बोएंगे फिर बाद में 4 महीना है। हमारे लिए हर एक व्यक्ति जो मसीह को नहीं जानता है वो हमारे लिए फसल है। और शायद हम सोचेंगे अगर इसकी पृष्ठभूमि में समरिया लोग कभी परमेश्वर को जानने के, उनके वादे के, उसके प्लान में कभी नहीं थे, लेकिन एक महिला पूरे गांव को परमेश्वर की ओर ले आती है। यही परमेश्वर का कार्य है। और मैं धन्यवाद दूंगा पास्टर ये मौके के लिए, और मेरे भाई जो रंजित दलवानी वो आपको आगे कुछ बातों को 10 मिनट में बताऊंगा और वो अंत करेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Thank you, Pastor. Yeah, thank you. Okay. Praise the Lord. My name is Ranjit Dalwani and I am from the Gideons. परमेश्वर की स्तुति हो, मेरा नाम रंजीत दलवानी है और मैं गिडियंस की ओर से आया हूँ। This morning I would like to talk to you about a doctor that we met in Borivali. और आज सुबह मैं उस डॉक्टर के बारे में कहना चाहता हूँ जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी बोरिवली में। And as Gideons, we have been going about to different clinics and hospitals. और गिडियंस के रूप में हम अन्य क्लिनिक्स और अस्पतालों में जाया करते हैं। And one such clinic we met Dr. Manish Malwadia, who comes from a Hindu background. और उसी एक क्लिनिक में हम डॉक्टर मनीष मलवाड़िया से मिले जो एक हिंदू परिवार से है। And typically these we put a dispenser in these clinics. और इन क्लिनिक्स पर डिस्पेंसर हम रखते हैं। This dispenser has our New Testaments. I'll just show it to you. और इन डिस्पेंसर्स में न्यू टेस्टामेंट्स है। And this is mainly meant for the patients. और ये पेशेंट्स के लिए है। But it so happened that Dr. Manish Malwadia और अब ऐसा हुआ कि डॉक्टर मनीष मलवाड़िया जो है happened to have a half face paralysis.
उनको आधे लकवा। चेहरे पे पैरालिसिस हुआ था, लकवा हो चुका Correct. था। And it so happened that he himself being a doctor, he went to many other specialists. और वो स्वयं डॉक्टर थे और वो भी कई स्पेशलिस्ट के पास जाया करते थे। So if you see this face, I don't know if it's clear to you, but he has a half face paralysis and his half face is drooped one side. और अगर आप इस वीडियो पे अगर देख पा रहे हो तो उनको आधे चेहरे पे लकवा हो चुका है और दूसरा चेहरा ऐसा बिल्कुल गिरा हुआ है। And he was quite dejected knowing that it's difficult for a healing. और वो बहुत हताश थे इस बात को जानकर कि एक चंगाई पाना बहुत कठिन होगा। What happened is that he saw this New Testament on his table. अब हुआ ये था कि उन्होंने इस नए करार को नए नियम को अपने टेबल पर देखा। He started reading the Psalms and the Proverbs. भजन संहिता और नीति वचन को वो पढ़ने लगे। And it so happened that he started healing started getting activated on his face. और हुआ ये कि उनके शरीर में एक चंगाई को महसूस करते हुए उनके चेहरे पर सुधार हुआ। Now this is quite a long testimony which I can tell you in detail, but because of the paucity of time, I will be shortening it. और ये बहुत ही लंबी सी गवाही है, लेकिन बहुत ही कम शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ। While he started reading the word of the Lord, his face started experiencing a healing. और जैसे वो परमेश्वर के कलाम को पढ़ने लगे उनके चेहरे पर सुधार होने लगे। Yeah, if you see the next snap in this particular PPT, अगर इसके अगली तस्वीर को आप देखते हो इस पीपीटी में, you will see that his face is quite healed to a great degree. और उनके चेहरे में अब काफी सुधार है। So this particular doctor is nowhere in one corner of the world. He is in Borivali IC Colony, Holy Cross Road. और वो किसी दुनिया के किसी कोने में नहीं है ये डॉक्टर बोरिवली के आईसी कॉलोनी होली क्रॉस रोड पे है। And he experienced God's love and healing in his life. और परमेश्वर के चंगाई को और उनके चमत्कार को उन्होंने अपनी जिंदगी में महसूस किया। So not just that, he believes that the God of the Bible is the true God which has healed him. और वो ये विश्वास करते हैं कि बाइबल के जो परमेश्वर है वो सत्य और जीवित परमेश्वर है। Now this would not have happened if some of the Gideons would have stepped out and gone to this particular clinics and given the God's word. अब ये संभव नहीं होता अगर गिडियन जो है वो इन अस्पतालों में जाके परमेश्वर के कलाम को वहाँ नहीं रखते। So this is one testimony, and this particular doctor not just reads the word but also gives this word of God to his patients as well. और ये डॉक्टर केवल वचन को पढ़ते ही नहीं, वो अपने पेशेंट्स को भी परमेश्वर का वचन देते हैं। So again, what is Gideon's all about? और गिडियंस का अर्थ क्या है या फिर ये हम करते क्या है? We are a group of professionals and businessmen. और हम एक झुंड है जहाँ पर अलग अलग प्रोफेशन के लोग और बिजनेसमैन एक साथ आते हैं। And we believe that it is our work to spread the gospel. और हम ये विश्वास करते हैं कि हमारा काम है परमेश्वर के वचन को बांटना। And this organization was founded almost 120 years back. और ये संगठन की पैदाइशी हुई थी तकरीबन 120 वर्ष पहले। And the goals that we have. और जो आने वाले दिनों के लिए हम जो देखना चाहते हैं वो ये है। We do three things. One is we build one another in Christ. हम तीन चीजें करते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं। We witness on a personal basis. मसीह में हम प्रोत्साहन देकर फिर हम गवाही बांटते हैं। And together with the Gideons and auxiliaries, we give out and place scriptures in different places. और गिडियंस और ऑक्सिलरीज के उनके द्वारा हम अलग अलग जगहों पर वचन को बांटते हैं। Yeah, so the third aspect, that is placing the scriptures in different places, is what we are typically known for. और तीसरी बात जो है बाइबल्स को अन्य स्थानों पर रखना, इसके लिए हम माने जाते हैं। So the word of Lord says in Isaiah chapter 55:11. और परमेश्वर का वचन यशाया की पुस्तक 55 के 11वें वचन में कहा गया है, So shall my word go, that it will not return void. और जब मेरा वचन जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटेगा। Yeah, and that's what we do when we put the scriptures in different places. और यही हम करते हैं जब वचन को हम अलग अलग जगहों पर रखते हैं या परमेश्वर के कलाम को रखते हैं। We believe that this word will achieve its purpose that it's supposed to. हम ये बखूबी विश्वास करते हैं कि वो उसका जो उद्देश्य है वो वचन वो पूरा करके ही लौटेगा। Yeah, so where all we place the word at,
जहाँ जहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को रखते हैं, It is like hospitals, hotels, अस्पतालों में, होटल्स में, then in police stations, fire stations, पुलिस स्टेशन में, फायर स्टेशन में, armies, आर्मी के बीच. right? So we have been doing this since a long time, and we will talk about what Borivali camp has been actively involved in, Borivali Guinness camp. और मैं उन चीज़ों को बताना चाहता हूँ जो हमारा संगठन करता है और ख़ास तौर पर बोरिवली कैंप क्या करता है. So this particular slide, if you see, it's basically we have reached out to the MHB police station. और अगर आप इस स्लाइड को देख रहे हो, हम MHB पुलिस स्टेशन के पास है. And we were able to give almost around 300 scriptures to all the policemen in the police station last year. और पिछले साल तकरीबन 300 बाइबल्स हमने इन्हें दिए हैं. Also, the similar example is of a Samata Nagar police station in Kandivali East. और इसी के साथ साथ समता नगर पुलिस स्टेशन जो कांदिवली ईस्ट में है, We were able to give almost 250 scriptures. हमने तकरीबन 250 बाइबल्स दिए हैं. Here in this particular screen, you see fire stations. We were able, if you see opposite Don Bosco, there's a major fire station. और डॉन बॉस्को के सामने ही एक फायर स्टेशन है. And we were able to give almost around 300 plus scriptures to these firemen. Not just give, but also give them the gospel Amen. during Christmas. और हमने तकरीबन 300 से भी अधिक बाइबल्स उनके बीच बांटे हैं. उसके साथ साथ परमेश्वर का वचन भी उनसे बांटा है. One particular major school in our area is Thakur Science and College, Science and Commerce College. और एक स्कूल जो हमारे बीच है वो है ठाकुर साइंस और कॉमर्स कॉलेज. By God's grace, we got a permission to give out scriptures, and you will be surprised to know that more than 9,000 scriptures we were able to give to the students in the colleges. और परमेश्वर की इच्छा से हम 9,000 से भी अधिक बाइबल्स उन स्टूडेंट्स को दे पाए हैं. Yeah, so there are so many examples of what we have been giving in different schools, colleges. Wherever we can't give, we have a open day in a school. Sorry. और परमेश्वर ने ऐसे हमें अन्य अवसर दिए हैं. अगर कभी हम दे नहीं पाते तो ओपन डे जरूर होता है स्कूल्स में. We stand out of the school and give these scriptures as well. और स्कूल के बाहर खड़े होकर हम इन बाइबल्स को देते हैं. Okay, so the Gideons are quite active in your area, that is Borivali, Kandivali, Daisar and Malad. और गिडियंस जो है आपके इलाके में बोरिवली, कांदिवली और दहिसर और मलाड में बहुत एक्टिव है. We have seen a few testimonies of how God's words has changed people. हमने कई गवाहियों को देखा है जैसे परमेश्वर के वचन ने कईयों के जिंदगी में परिवर्तन लाया है. So how can you be a part of the ministry as a church? अब आप कलीसिया के रूप में इसमें कैसे सहभागी हो सकते हो? So we don't function apart from the church, we work along with the church. हम कलीसिया से बाहर नहीं लेकिन कलीसिया के संग मिलकर काम करते हैं. 3 things that you can do. 3 चीजें आप कर सकते हो. You can pray for the Gideons. आप गिडियंस के लिए प्रार्थना कर सकते हो. You can join the Gideons. आप गिडियंस ज्वाइन कर सकते हो. And you can contribute for the scriptures that we give out. और आर्थिक रीति से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो जो वचन जो बाइबल हम देते हैं उसके लिए. So we all Gideons are basically businessmen and professionals. और And, जो गिडियंस में हम जो लोग हैं हम बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स हैं. and we ourselves contribute for the word of Lord that we give out. और हम स्वयं कंट्रीब्यूट करते हैं परमेश्वर के कलाम के लिए. Yeah, so I would encourage you, if you fit in the bracket that, and you would be interested in this ministry. और अगर आपको लगता है कि आप इसमें दिलचस्पी रखते हो and you would like to know more about the ministry, और आप हमारी सेवकाई के बारे में और जानना चाहेंगे, you can reach out to us or the pastor आप जरूर हमसे मिल सकते हो या अपने पास्टर से पूछ सकते हैं. and get to know how you can partner with our ministry. और आप जानेंगे कि आप कैसे हमारे साथ सहभागिता दिखा सकते हैं. I had a lot of things to say, और मेरे पास कई चीजें थी कहने के लिए, but because of shortage of time, I'll end my talk here. और समय की पाबंदी के कारण मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ. Thank you so much for your time. बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए. Thank you. थैंक यू सो मच. Thank you, Brother Bijoy and Brother Ranjit, for coming over and sharing your vision and the word as well. It was truly a blessing. और बहुत बहुत धन्यवाद भाई विजय और भाई रंजीत आपके विजन को शेयर करने के लिए और वचन को शेयर करने के लिए. When you were talking about the living water, और जब आप जीवित जल के बारे में कह रहे थे, I was just thinking, it's so
important in our life to have experience that living water. और मैं सोच रहा था कि कितना महत्वपूर्ण है हमारे जिंदगी में इसका अनुभव करना। Jesus met that woman and she spoke about the living water, and he spoke about the living water. यीशु मसीह उस स्त्री से मिले और उन्होंने उस जीवित जल के बारे में कहा। And Gideon's, as an international ministry, you go ahead and distribute living word to people. और जो गिडियंस इंटरनेशनल मिनिस्ट्री है, आप जाकर लोगों तक वो जीवित पानी को पहुंचाते हो। I don't think there is any soul in the church who does not know what Gideon's is. और मुझे नहीं लगता कलीसिया में कोई भी नहीं जानता होगा गिडियंस मिनिस्ट्री Yeah, I को। think in my young age I had just one Bible for a long time, and that was a Gideon Bible. और जब मैं एक युवक था तभी भी मेरे पास एक बाइबल हुआ करता था काफी समय तक, और वो भी एक गिडियन का बाइबल था। Yeah, and I thank God that I could learn at a very young age because of that Bible. और मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ कि बहुत ही कम आयु से मैं उससे पढ़ पाया परमेश्वर के बारे में। Yeah, I have also experienced, like they said, I've also experienced where I went to a hotel and I found a Bible there, and I was surprised that how a hotel can keep a Bible there. और मैं अचंभित था जब मैं एक होटल गया था और वहाँ पर मैंने एक बाइबल को देखा, बड़ा अचंभित था कि बाइबल यहाँ कैसे हो सकता है। Yeah, I am truly amazed by your work, and God really bless you all. God really bless the ministry. और आपकी मिनिस्ट्री पर हम फख्र करते हैं और हम विश्वास और आशा करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप आगे बढ़ते रहें। Yeah, let it just grow and grow multifold, because you guys are doing a great job. आने वाले दिनों में इसमें सिर्फ बढ़ोतरी हम मांगते हैं परमेश्वर से। Amen. आमेन। Now, if you guys are at home watching us still, I would encourage you to stand on your feet and we'll sing a song. We'll just worship Him. अगर आप अपने अपने घरों में हैं तो मैं दरखास्त करता हूँ कि आप खड़े हो जाए, एक साथ मिलकर हम आराधना करेंगे। Yeah, one last time. Presti, come on. Hallelujah. I hope and believe that you are blessed this morning, and your life, I believe, will never be the same, because God has done a new thing in our life. Like we have been saying this morning, thank you, pastors, for the word and for all the work that you're doing. We just sing this song and praise God before we finish with our service. यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। ओ यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। सूली पर ले लिया पापों को मेरे, जान दे दी बदले जान के मेरे, सूली पर दे दिया पापों को मेरे, जान दे दी बदले में जान के मेरे, थोड़े सारे बंधन आजाद है किया, थोड़े सारे बंधन आजाद है किया, और जीने का मकसद मिला, और जीने का मकसद मिला। ओ यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। भटक रहा था मैं अंधेरी राह पर, तन्हा अकेला जाता किधर, भटक रहा था मैं अंधेरी राह पर, तन्हा अकेला जाता किधर, खोजते मुझको यीशु चला आया, खोजते मुझको यीशु चला आया, तो जीवन में सब कुछ मिला, ओ तो जीवन
सब कुछ मिला, ओ तो जीवन में सब कुछ मिला, 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 तो बोलो तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला. Praise the Lord. Amen. परमेश्वर की स्तुति हो. Because हालेलुया. Jesus is there, we could get everything in our life. और क्योंकि यीशु मसीह जीवित है, हमारे पास सब कुछ है हमारी जिंदगी में. Oh, what a wonderful source that we serve and we worship. और कितने उस अनोखे जरिया की हम परमेश्वर की आराधना करते हैं. What a privilege to be called as His people. और कितना हमें गर्व है कि हम उनकी प्रजा माने जाते हैं. Amen. हालेलुया. Let our God's name be glorified. परमेश्वर का नाम सदा ऊंचा उठाया जाए. Wherever you are, can you just lift your hands up आप जहां पर भी हो कृपया अपने हाथों को and उठाएं say and receive the benediction. और इस बेनेडिक्शन को स्वीकारें. May the grace of the Lord Jesus Christ Amen. and the love of the Lord Amen. and the fellowship of the Holy Spirit Amen. be with you Amen. always and always. And we all say, Amen. Amen and amen and amen and amen and amen. Hallelujah. I believe this day was a blessing to you. मैं विश्वास करता हूँ आज का दिन आपके लिए आशीषमय था. I believe the word was a blessing. मैं विश्वास करता हूँ वचन आपके लिए आशीषमय रहा. Greetings and regards from Bangalore, from our pastor all the way. हमारे पास्टर के द्वारा जो बैंगलोर में है आपको हम ग्रीटिंग्स पेश करते हैं. He could not be here, but he had to be in Bangalore for some family commitments. और क्योंकि उनके फैमिली कमिटमेंट्स के कारण उन्हें बैंगलोर जाना पड़ा, इसलिए वो आज हमारे बीच नहीं है. Keep them in prayer as well. उन्हें प्रार्थना में जरूर याद कीजिएगा. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष Have दे. a beautiful week. बहुत ही खूबसूरत हफ्ता बिताएं. We'll meet again next Sunday. और बहुत ही जल्द हम अगले हफ्ते मिलेंगे. Amen. आमेन.